myself Rubina Chaudhary. Today we are back with one more lecture of chemical thermodynamics. Student, in previous lecture of chemical thermodynamic we have discussed thermochemistry. In thermochemistry we have seen that how we notice the change in rate or the change in the heat of a reaction whenever my reactant is getting converted into product, and that is known as an enthalpy change or change in a heat of a chemical reaction. Students, in previous lecture I have told you that we are going to see how to represent a chemical reaction in thermochemistry. There are some specific rules which has to be followed whenever you are writing down any chemical reaction in thermochemistry. So today we are going to see that particular thing. And apart from that, now when you move to thermochemistry, instead of enthalpy change we are going to see standard enthalpy change. So what is standard and what does standard stands here, that we are going to see. Like previously we were writing down as delta H, and this delta H was representing an enthalpy change. But now instead of writing down delta H, we are going to write down delta H naught, and that H naught will represent as a standard enthalpy of a chemical reaction. Okay students, so let us see what is standard enthalpy of a chemical reaction. Whenever we perform any kind of a reaction, there are various conditions which could be used. Like sometime we can increase the temperature, we can increase the pressure, and as temperature increases, as pressure increases, the condition of chemical reaction also change. So to notice enthalpy change for that particular reaction becomes quite difficult. In standard enthalpy of a chemical reaction, we always keep our conditions constant. That means when I have a reactant A, if I have a reactant A and B and they are going to give me a product P, in this particular condition student, I will make sure that my temperature remains same throughout the chemical reaction, my pressure remains same throughout the condition. And one more thing, what happens sometime we take 2A and 3B and that gives me any kind of product like 3P. So in many of a chemical reaction, number of reactant differs and number of product also differ. But in that particular reaction, it becomes quite difficult to judge for every particular reaction what are the changes that are occurring. So to overcome this difficulty student, there are some standard conditions which are given, and in that standard condition we measure our change in enthalpy, and that change of enthalpy is known as a standard enthalpy of a chemical reaction. So let us see student what are the standard enthalpy of a chemical reaction. So when we are talking about standard enthalpy of a chemical reaction, let us take a very common example, H2O, that means your dihydrogen, which is in gaseous state whenever react with oxygen. Okay, whenever react with oxygen, since my oxygen is also O2, I will take it as 1/2 O2. It is again in gaseous state. They all together combine, and when they combine they gave me H2O, and that particular time my H2O is again in gaseous state. While performing this reaction, it is not known whether this reaction is performed at with temperature and with pressure. So whenever I write down delta H for this reaction, I am not aware what is the pressure and what is the temperature of a chemical reaction. But now student, whenever a word comes delta H naught or delta H naught standard enthalpy of a reaction, that means they tell you any chemical reaction will be performed at temperature 25 degree Celsius. 25 degree Celsius, and when you convert it into Kelvin, that is 298 Kelvin.
Whenever you write down standard enthalpy of a chemical reaction, that means at that particular time the temperature at which reaction will be performed is always 298 Kelvin. It will be not less than 298 and not more than 298. So my temperature for any standard reaction in thermochemistry is always going to be a 298 Kelvin. Later on, student, after temperature there is one more factor which is important, is pressure. Okay, we can increase pressure, rate of reaction may increase. There are so many factors, there are so many things that changes with change in pressure. So I have to always take my pressure as 1 bar, and 1 bar that is equal to 1 atmospheric pressure. इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जब हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो उसका मतलब है मेरा जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा 298 केल्विन होगा, मेरा प्रेशर हमेशा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अभी मैंने जो यहाँ पे रिएक्शन लिखा था H2 plus half O2 is equal to H2O, ओके स्टूडेंट्स, बट इसी रिएक्शन को हम कुछ इस तरह से भी लिखते आए हैं, राइट। वी ऑलवेज राइट डाउन 2H2 गैस और उसको हम रिएक्ट कराते थे O2 गैस के साथ, और फिर हमें जाके मिल जाता था H2O के 2 मॉलिक्यूल्स, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो भी एंथैल्पी आएगी दैट वी राइट डाउन, बट स्टूडेंट जब हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हमेशा मेरे पास जो भी रिएक्टेंट साइड पे है, माय रिएक्टेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। हमेशा हमें 1 मोल ऑफ अ रिएक्टेंट के साथ ही अपना रिएक्शन परफॉर्म करना है। हम अपने रिएक्टेंट को 2-3 मोल्स नहीं लेंगे। हो सकता है प्रोडक्ट साइड पे वो चीज़ चेंज हो जाए, दैट इज़ पॉसिबल, और वो चलेगा। बट जब मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन फाइंड आउट करूँगी, तो उस टाइम पे जो तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि वी ऑलवेज परफॉर्म अ केमिकल रिएक्शन और वी ऑलवेज कैलकुलेट अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन फॉर 1 मोल। तो तुम्हारा जो थर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 1 मोल। इसको हम हमेशा 1 मोल के लिए ही कैलकुलेट करेंगे। वी कैन नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ मोल 5 और 6 ऑन द रिएक्टेंट साइड। हमेशा जब भी तुम्हारा डेल्टा H नॉट तुमको मिलेगा, डेल्टा H मतलब चेंज इन एंथैल्पी, यहाँ पे अगर सिर्फ डेल्टा H दिया हुआ है मतलब टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। टेम्परेचर को तुम इंक्रीज कर सकते हो, टेम्परेचर को तुम डिक्रीज कर देते हो। लेकिन जब डेल्टा H नॉट होगा ना, जैसे ही H के ऊपर ये नॉट आ गया, मतलब तुम्हारे सामने ये 3 कंडीशन क्लियर होंगी। ये रेट ऑफ रिएक्शन 1 मोल के लिए बता रहा है, चेंज इन एंथैल्पी 1 मोल के लिए बता रहा है, प्रेशर हमेशा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और टेम्परेचर इज गोइंग टू बी अ 298 केल्विन, दैट मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस। ये तुम्हारे पास आ गया कंडीशन फॉर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। Temperature should be 298 Kelvin, pressure should be 1 atmospheric pressure, and it is always calculated for 1 number of moles. Now student, we have a very short definition of standard enthalpy of a chemical reaction, and let us see what does that definition tell us. Standard enthalpy of a chemical reaction, standard enthalpy of chemical reaction is standard enthalpy of a chemical reaction tell us about the changes that occur
in chemical reaction when all the elements, or you can also write down as substance, when all the substance are in standard state. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हमें बताता है कितनी चेंज इन एंथैल्पी हुई है, मतलब कितना तुम्हारा एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है और कितना तुम्हारा एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो रहा है. स्टैंडर्ड स्टेट में मतलब तुमने जितने भी एलिमेंट लिए हैं रिएक्टेंट साइड पे वो सबके सब स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए. जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और दोनों मिलके मुझे क्या दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं. तो स्टूडेंट इस केस में ये ज़रूरी है कि तुम्हारा हाइड्रोजन ये तीनों पैरामीटर्स को फॉलो करे और उसके साथ साथ तुम्हारा ऑक्सीजन भी ये तीनों कंडीशंस को फॉलो करे. अब बाद में जो तुम्हारा प्रोडक्ट बन के आएगा इन दोनों रिएक्टेंट से वो भी इसी पैरामीटर्स को फॉलो करेगा. उस समय पे उसका टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एंड लास्ट में हमें जो भी मिलेगा दैट विल बी फॉर 1 नंबर ऑफ मोल. सो स्टूडेंट दिस इज अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, बट ये 3 कंडीशन है. हम 298 केल्विन, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 मोल सब्सटेंस को जो बनाने में एनर्जी चेंज लगती है उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. Now student, we have another topic and that is known as a thermochemical equation. So let us see what is thermo. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज thermochemical reactions, or you can also call it as a equation. You can write down in either way thermochemical equation और thermochemical reaction क्या होता है. अब बच्चों whenever we talk about chemical equation या फिर हम कभी भी बात करें chemical reactions के बारे में तो it is very clear chemical reaction क्या होता है. chemical reactions में हम reactant को convert करते हैं प्रोडक्ट में, बट यहाँ पे जो ये वर्ड थर्मो आया है ना, द थर्मो स्टैंड एज हीट. थर्मो का मतलब हीट होता है. हीट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जो नेचर में अकर कर रहा है और उस टाइम पे हम उसका चेंज इन हीट को कैलकुलेट करते हैं, उसी को थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कहा जाता है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मेरे पास एक रिएक्टेंट है A+B, ओके, और ये दोनों के पास यूजुअली 100 किलो जूल की एनर्जी थी, ओके, और बाद में जाके ये मुझे प्रोडक्ट दे रहे हैं और मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरे प्रोडक्ट के पास 150 किलो जूल की एनर्जी है. तो जब भी हम किसी तरह के थर्मोकेमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं तो हमारे लिए ये जानना कि रिएक्टेंट साइड पे कितनी एनर्जी थी और प्रोडक्ट साइड पे कितनी एनर्जी है ये बहुत नेसेसरी हो जाता है. कोई भी ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें तुम हीट ऑफ अ रिएक्शन, कितना हीट इंक्रीज हो रहा है, कितना हीट डिक्रीज हो रहा है, उसको कैलकुलेट करते हो, उसको नोटिस करते हो, दैट इज नोन एज अ थर्मोकेमिकल इक्वेशंस और दैट इज नोन एज अ थर्मोकेमिकल रिएक्शन. Chemical reaction, what does chemical reactions in which heat of a reaction is calculated is known as a thermochemical reactions. कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें तुम हीट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को कैलकुलेट करते हो, मतलब रिएक्टेंट में कितनी एनर्जी थी और प्रोडक्ट में कितनी एनर्जी है, और फिर तुम उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हो. जैसे हमने थर्मोकेमिस्ट्री के इनिशियली देखा था कि चेंज इन प्रोडक्ट, सबमिशन ऑफ प्रोडक्ट में से मैं माइनस कर देती हूँ सबमिशन ऑफ रिएक्टेंट को, तो उसे हम थर्मोकेमिकल इक्वेशंस बोलते हैं. हम उसका हीट ऑफ अ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं, पहली चीज़, दिस इज अ फर्स्ट थिंग. दूसरा चीज़, कभी भी तुम थर्मोकेमिस्ट्री में कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट कौन सा है.
तुम्हारे रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट पता होना चाहिए तुम्हें, वेदर इट इज इन सॉलिड स्टेट, वेदर इट इज इन लिक्विड स्टेट और इट इज इन गैसियस स्टेट। जब तक तुम्हें स्टेट नहीं पता है तब तक तुम इस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते हो। और हमेशा स्टेट को मेंशन किया जाएगा तुम्हारे रिएक्टेंट के साइड में और एज वेल एज तुम्हारे प्रोडक्ट के साइड में। और साथ साथ में तुम्हारे लिए नंबर ऑफ मोल्स का भी जानना ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू नो कि हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन एनी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। ये तीन चीज़ें हैं, बट देर आर सम रूल्स एज वेल। देर आर सम रूल्स विच वी हैव टू नो वेन एवर वी आर राइटिंग डाउन अ थर्मोकेमिकल रिएक्शन। सबसे पहला रूल जो है, द फर्स्ट रूल विच टेल अस कि इन एनी थर्मोकेमिकल इक्वेशन, इन एनी थर्मोकेमिकल रिएक्शन, किसी भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन में तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड। कभी भी तुम किसी भी तरह का थर्मोकेमिकल रिएक्शन लिखो तो तुम्हारे पास जितना रिएक्टेंट है उसी के बराबर तुम्हारा जो है प्रोडक्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो जो रिएक्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट। जैसे कि मैंने H2O प्लस 1/2 O2 के साथ हमको मिल गया H2O। ये जो मेरा रिएक्शन है, यहाँ पे भी मेरे पास 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी मेरे पास 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे मेरे पास 1 ऑक्सीजन था और यहाँ पे भी मेरे पास 1 ऑक्सीजन है। इन एनी थर्मोकेमिकल रिएक्शन, नंबर ऑफ मोल ऑन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड। इसका मतलब है बेटा, केमिकल रिएक्शन दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए। दैट इज नथिंग, दैट मीन्स chemical reaction on reactant and product side should be balanced। हमेशा तुम्हें एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ही लिखना है। तुम अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के साथ थर्मोकेमिकल इक्वेशंस और थर्मोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते हो। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट इज रिटन सच एज कि जब भी तुम किसी तरह का थर्मोकेमिकल रिएक्शन लिखते हो, जैसे मैंने H2 प्लस 1/2 O2 एंड दैट गिव्स मी H2O लिखा, तो जब मेरा प्रोडक्ट लिख के हो गया तो प्रोडक्ट के बाजू में जो खाली स्पेस है वहाँ पे मैंने लिखा डेल्टा H0 और फिर प्लस या माइनस में मैं एनर्जी चेंज लिखती हूँ, दैट इज किलो जूल पर मोल। ओके, तो बोलता है एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन मस्ट बी शोन। सेकेंड पॉइंट टेल्स यू एंथैल्पी चेंज for chemical reaction, enthalpy change for a chemical reaction must be shown on right hand side of chemical reaction। जब भी तुम कोई केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो तो उसके राइट हैंड साइड में तुम्हें उसका एंथैल्पी चेंज लिखना है। जैसे A प्लस B एंड इट इज गोइंग टू गिव मी अ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के बाद जो खाली जगह बची है वहाँ पे तुम्हें डेल्टा H0 प्लस और माइनस के साथ जो भी आता है दैट इज किलो जूल पर मोल, ये तुम्हें स्पेसिफिकली वहाँ पे मेंशन करना है स्टूडेंट। ये तुम्हारे पास सेकेंड पॉइंट हो गया। अब जो तुम्हारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट टेल्स यू स्टूडेंट फिजिकल स्टेट ऑफ अ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिजिकल स्टेट ऑफ अ रिएक्टेंट and product must be specified।
तुम्हारा रिएक्टेंट और तुम्हारा प्रोडक्ट कौन से स्टेट में है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं अगर A+B लिख के प्रोडक्ट करके छोड़ दूँ विथ एंथैल्पी चेंज, तो यहाँ पे मुझे फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे स्टूडेंट, मुझे यहाँ पे हाफ मार्क्स मिलेगा क्योंकि मैंने अपने रिएक्शन का स्टेट नहीं लिखा है। तो इसको लिखने के लिए क्या बोल रहा है, अगर ये तुम्हारा गैस में है तो A के बाजू में एक छोटे से सबस्क्रिप्ट में तुम उसे मेंशन करोगे A इज़ इन गैसियस स्टेट, और B भी तुम्हारा गैस में है, और फॉर एन एग्जाम्पल मुझे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो लिक्विड स्टेट में मिल रहा है। तो मुझे वो सारे के सारे फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करना है स्टूडेंट। आई हैव टू मेंशन माई ऑल द फिजिकल स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। दिस इज अनदर थिंग। एंड नाउ फोर्थ थिंग स्टूडेंट, व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, अगर मेरा इन केमिकल रिएक्शन डेल्टा H0 अगर नेगेटिव आता है, डेल्टा H0 नेगेटिव आता है, मतलब दैट इज -293 किलो जूल या +293 किलो जूल। अगर माइनस आता है ना, नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दैट मीन्स वो अपने अंदर से हीट को रिलीज कर रहा है, सिस्टम हीट दे रहा है किसको, सराउंडिंग को। वहीं पे स्टूडेंट अगर मेरा डेल्टा H0 की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इफ माई डेल्टा H0 कम्स पॉजिटिव, इट मीन्स इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब वो हीट को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, हीट को सराउंडिंग से ले रहा है, और इसलिए उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ये तुम्हारे पास 4 चीज़ें हैं जो तुम्हें थर्मोकेमिकल इक्वेशंस लिखते वक्त याद रखना है। पहला पॉइंट, हमेशा एक बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, उस बैलेंस इक्वेशन में तुम हर एक रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का एज वेल फिजिकल स्टेट प्रॉपरली मेंशन करोगे। थर्ड पॉइंट बोलता है कि जब भी तुम लिखते हो तो एंथैल्पी चेंज राइट हैंड साइड पे, मतलब प्रोडक्ट के बाजू में जो जगह बचती है वहाँ पे तुम्हें उसका एंथैल्पी स्टेट लिखना है, और वो लिखते वक्त तुम्हें प्लस में वैल्यू आ रही है या माइनस में आ रही है उसको भी प्रॉपरली मेंशन करना है। अगर माइनस में आ रहा है मतलब एनर्जी जा रही है, अगर प्लस में आ रहा है तो एनर्जी आ रही है। इसके साथ साथ थर्मोकेमिकल रिएक्शंस ने हमें बताया है कि हम किस तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एनी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, लेट अस सी। अब एक बहुत कॉमन सा केमिकल रिएक्शन है CH4, दैट इज माय मीथेन। ओके स्टूडेंट, ये रिएक्ट करता है O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, तो मुझे जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और उसके साथ साथ मुझे मिलेगा H2O। तो अब हम अपने सारे रूल्स को वहाँ पे अप्लाई करते हैं, एंड लेट अस सी हाउ वी कैन राइट डाउन। सबसे पहले मैंने मीथेन लिखा, बट मैंने मीथेन का फिजिकल स्टेट नहीं लिखा, मतलब मेरा ये केमिकल रिएक्शन रॉन्ग होगा। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेंशन माय फिजिकल स्टेट विच इज़ 1 ग्राम। फिर मेरा ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, मेरा O2 गैसियस स्टेट में है, मेरा कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है, और साथ साथ में जो मेरा यहाँ पे वाटर है, मैं वाटर को ले लेती हूँ कि लिक्विड स्टेट में। मैंने सबसे पहले अपने थर्ड पॉइंट को क्लियर कर लिया। अब सेकेंड और फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना चाहिए, पहला पॉइंट बोल रहा है। तो देखो बच्चों, इससे पहले तुमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन करा है, तो उसमें तुमने बोला है रिएक्टेंट 1 मोल ही होना चाहिए। तो अगर मुझे यहाँ पे जो मेरा मेन रिएक्टेंट है ना वो मीथेन है, तो यहाँ पे मेरा मीथेन हमेशा 1 मोल ही होगा। हाँ, उसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि 1 मोल ऑफ इथेन कैन टेक 2 moles of oxygen, 3 moles of oxygen to react with it. So my methane should be always 1 mole. तो मैंने अपने मीथेन को 1 मोल कर दिया। तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, बैलेंस हो गया। 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। दैट मीन्स आई हैव टू राइट डाउन हियर 2। रेस्ट ऑफ ऑल मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे आई एम गेटिंग
6 oxygen, so that's why I am going to write down here like 2 and 4 ऑक्सीजन, तो ये मेरा हो जाएगा 2O2। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने अपने सेकेंड पॉइंट को भी लिख दिया। अब लास्ट पॉइंट ये बोलता है कि तुम इसका डेल्टा H नॉट मतलब चेंज इन एंथैल्पी लिखो। ये रिएक्शन करते वक्त कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो स्टूडेंट इसका जो एंथैल्पी चेंज होता है दैट इज 890 किलो जूल, और ये पर मोल के टर्म्स में है, एक मोल के टर्म्स में है। ओके, सो स्टूडेंट इसका जो डेल्टा H नॉट है दैट इज -890 किलो जूल। ओके बच्चों, तो बेटा यहाँ पे ये जो माइनस साइन है ना, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन तुम्हें एक और बात बताता है कि किस तरह से हम किसी केमिकल रिएक्शन को रीड कर सकते हैं। अब तुम्हें वो ये केमिकल रिएक्शन अगर रीड करना है तो कैसे रीड किया जाएगा, तो वो बोलता है इसको रीड करते वक्त तुम लिखो 1 मोल ऑफ CH4। अगर तुम्हें नहीं पता है व्हाट इज CH4 विच इज मीथेन एंड एवरीवन नोज अबाउट इट, बट इफ यू डोंट नो तो यू कैन राइट डाउन CH4। 1 मोल ऑफ CH4 एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज O2। अगर तुम CH4 लिख रहे हो तो O2 ही लिखो। रिएक्ट्स विथ ईच अदर और कंबाइंड विथ ईच अदर एंड प्रोड्यूस 1 mole of carbon dioxide that is CO2 and 2 moles of hydro water। तो इसको तुम लिख कैसे सकते हो, you can write down 1 mole of CH4 reacts with 2 mole of O2 and produce, और इससे जो बनता है is and produce 1 mole of carbon, 1 mole of CO2 and 2 mole of H2O। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तुम्हारे पास एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जो तुमने लिख लिया है। ये तुमने आज के टॉपिक में देखा है। सबसे पहले स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जो तुम स्टैंडर्ड स्टेट में करते हो, टेम्परेचर 298, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उस 1 मोल के लिए परफॉर्म करते हो, तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन है। फिर हमने कुछ रूल्स देखे हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन के लिए। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ फॉर्मेशन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ कंबशन। ये एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट्स जो तुम्हारे एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ फॉर्मेशन क्या होता है और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ कंबशन क्या होता है। सो लेट अस सी वो क्या होता है इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट एंड कीप वॉचिंग।